Good morning to my students. So today we are going to start one more topic, that is combination or propagation of error, right? As we know, if we do any of the measurements, right? If we can calculate length, we can calculate mass, we can calculate volume, right? If we are calculating anything, then there is probability that there is some error introduced in this. 100% accuracy can't be achieved. You know this thing, right? So today we will learn that if we are doing any experiment, we measured some quantity, right? Let that quantity is called measured value. We measured that value, right? Let it be any value. Like we calculated mass, right? Let we calculated mass. So that value must be having some error, right? Some amount of error must be there. Now we are using same results, same measurement results to perform any operation. Any arithmetic operation is performed in this data, then we will get some calculated value. We will get some final value, right? We will get some final value. It's obvious that final value would also have amount of error in it, right? Because that data we use to calculate this final value is having error. So it's obvious that the final calculated value will be having error, right? So it is also having error. When we did any arithmetic operation, we use some formula either to do addition, for subtraction, for division, or for multiplication, or for any arithmetic operation, right? So if the original data is having the error, then it's but obvious that the final calculated value will be having that error introduced in it, right? So now let's take one example. First, we want to calculate density, right? We want to calculate density of any substance, right? How we will calculate it? We know this thing that the formula to calculate density is mass per unit volume, right? Mass per unit volume. So, to calculate mass density, to calculate density of any material, we need to calculate the mass of that object, and secondly we need to calculate volume. Individually we will calculate mass and volume of that material, right? But here, as we know, if we are calculating mass, then it's obvious that measured quantity must be having some error in it, right? And volume is also individually calculated. It will also have some error introduced in it, right? So if we will use arithmetic operation, which arithmetic operation is used over here? That is division. So if we will use the formula over here, then we will get calculated value of density after dividing mass per unit volume. We will get value of density. So it's but obvious that the density will also be having error in it, right? So this is called propagation of error, that we were having some individual measurement values, then we use some operations on it, either subtraction, addition, division, or multiplication, or any other operation, and that error is propagated from its raw form to the final calculation, right? वो एरर क्या है बच्चा? आपका प्रोपेगेट हो गया है आपका फाइनल रिजल्ट में भी. दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपेगेशन और एरर, राइट? सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स by which 4 basically depends upon arithmetic operations or the type of error or the type of operation you are performing, right? So these factors will result ki how our error is propagating, right? So today we will see error, how errors get propagate when we used to do addition, when we used to do subtraction operation, or when we used to do multiplication or division, or when we used to increase the power of the measured value, then how it will affect the error introduced in it, right? So today we will see. So let's check our first part of this topic, that is error
of a sum. This topic will tell us how errors get propagate when we use to do addition operation, right? So let's take one example. We need to calculate one total distance between P and R, right? There are 2 points P and R, and we need to calculate this whole distance, right? But what we can do is to calculate up to Q. This point is Q, right? First we will calculate PQ distance. Let this distance is equals to small a, right? Let kiya that the distance P between P and Q point is represented with small a, right? Next is distance between Q and R, right? Q and R. So second we will individually calculate the distance between point Q and R, right? We calculated both of these distances, and after this we need the complete distance between P and R. Then you will say, ma'am, it's obvious, we will calculate A and B, right, individually, and we will add them both, and then we can get the complete distance, that is, let it be represented with letter X, so we can easily calculate this distance, right? This is called arithmetic operation, right? We all know this thing, right? So here what we want to check, that there was some error introduced in A, some error was also introduced in B measurement, right? Individually there were some errors, but when we did arithmetic operation and we get the final result X, then what is the amount of error and what is the exact error introduced in our final calculated value of X, right? That we need to check, or we need to find out the formula or derivation to check which amount of error will be introduced in the final result if we will perform addition operation. So let's check it out, right? So there is one very simple derivation, right, which will help you in many cases, like for NEET, for JEE, it's very important, right? So let's check it out. This is first equation, that we are doing addition operation, and X is our final distance, complete distance, which is sum of small a and small b distances, right? So we calculated small a first, right? And we know this thing, the value of small a was having some error, right? And the final error, जो measurement value आएगा small a का क्या रहेगा? एक तो जो उसका exact value है, right? जो भी उसका value है, और प्लस माइनस में उसमें क्या है आपका डेल्टा a, आपका क्या है इंडिविजुअल एरर है, एरर 1 है, ये आपका फर्स्ट मेजरमेंट में जो एरर है, राइट? नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया बच्चा स्मॉल बी, राइट? स्मॉल बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, स्मॉल बी डिस्टेंस कैलकुलेट किया, स्मॉल बी कुछ डिस्टेंस है और लेट किया, उसमें क्या है प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो मैं यहाँ पर ऊपर आपको टैग कर रही हूँ वो देखिए, राइट? एरर हमने किए थे तो उसमें क्या है आपने किया था प्लस और माइनस में आपका एरर क्या है, आपका ग्रेविटेशन का हमने एग्जाम्पल लिया था, राइट? सो प्लस माइनस में हमारा डेल्टा बी एरर हमने क्या है लेट किया, वो ऐड हुआ है डेल्टा B, right? A was here numeral, this was also numeral, right? So ये A और B की हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई हैं। अब जब हम मेजर करेंगे x का वैल्यू, जब हम टोटल डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि जो हमने रॉ डाटा लिया था उसमें ही एरर इंट्रोड्यूस था ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक हमारा फाइनल रिजल्ट x में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। सो लेट किया जो फाइनल रिजल्ट x है उसमें x प्लस माइनस डेल्टा x जो है आपका एरर इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? ये आपका न्यूमेरल है एंड दिस इज योर एरर इन फाइनल एरर जो है वो डेल्टा एक्स है, राइट? जो आपका लास्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट में हमें मिलेगा, राइट? सो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बच्चा, राइट? सो नाउ वी नो दिस थिंग, द फाइनल रिजल्ट विल बी एक्स, दैट इज जब मेजरमेंट आएगा आपका फाइनल कैलकुलेशन का, और प्लस माइनस उसमें कुछ डेल्टा एक्स का एरर इंट्रोड्यूस होगा, राइट? एंड दैट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, पुट कीजिए बच्चा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में a इज इक्वल्स टू, हम क्या पुट कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, क्योंकि उसमें कुछ एरर भी है तो हम उसका मेजरमेंट a प्लस माइनस उसमें कुछ डेल्टा a का एरर है। सो लेट्स पुट इट आउट, x इज इक्वल्स टू a प्लस b,
राइट। जब हमने एरर्स इसका पुट किया तो क्या बन गया, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड दिस प्लस साइन एंड b प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकते हैं हम, राइट, with errors, right? So this will become like this, right? So now we can write it as a and b को आप बाहर ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिख सकते हैं इसको। a प्लस b को हमने आउटसाइड ले लिया है, सेम लिख लिया है, राइट, एंड इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा x। क्लियर है यहाँ तक बच्चा। उसके बाद अब a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है बच्चा, दैट इज इक्वल्स टू x, राइट, जो हमने कैलकुलेट मेजरमेंट किया है, जो इन दोनों की वैल्यू होगी न्यूमेरिकल की, उनका एडिशन किसके इक्वल होगा, दैट लेंथ विल बी इक्वल्स टू x, राइट, और उसमें प्लस माइनस का कुछ एरर होगा। सो हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू, इसको हम x लिख सकते हैं बच्चा, इसको कन्वर्ट कर लो, x लिख लो, प्लस माइनस डेल्टा a plus delta a plus delta b, right? Now this x on left hand side and right hand side will be cut out and it will become delta x is equals to, क्या आएगा बच्चा, प्लस माइनस डेल्टा a plus delta b, right? So this is what delta x was, what, error in फाइनल कैलकुलेशन, राइट, जो फाइनल कैलकुलेट करके हमें डाटा मिला है उसमें जो एरर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा एक्स, एंड वो क्या होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। ये क्या था हमारा, एरर 1 था, है ना, एंड ये क्या था हमारा, एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एरर 2 था। सो द फाइनल कैलकुलेशन जो एरर होगा, जो उसका आपका एब्सोल्यूट एरर्स हैं बच्चे ये, राइट, जो एब्सोल्यूट एरर जो फाइनल रिजल्ट में होगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एरर्स इन द मेजरमेंट वैल्यू जिसके हमने कैलकुलेशन अप्लाई की थी, राइट। सो दिस इज अवर फर्स्ट थिंग, दैट जब एरर्स हमारी क्या होंगी, जब हम सम करते हैं, एडिशन कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं दो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स पे, तो जो उनका सम आता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें कितना एरर होता है, दैट इज इक्वल्स टू, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, राइट, एंड वो क्या होगा, एडिशन होगा इंडिविजुअल दोनों एरर्स का, राइट। सो दिस इज बेसिकली रिलेशन। नाउ लेट्स चेक आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज एरर ऑफ अ सब्ट्रैक्शन, राइट। जब हम क्या करेंगे बच्चा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस लेंगे, राइट, तो उस केस में हमारी एरर्स कैसे अफेक्ट करेगी हमारे फाइनल कैलकुलेशन को, एरर ऑफ अ difference, right, difference means subtraction, right, subtraction. When we will apply subtraction operation, then how our final result will be affected by the individual error in the measured quantities, right. Let we are taking example x is equals to a minus b. आप same example भी continue कर सकते हो. Let we have distance between points p and r, right, and Q एंड R के बीच का भी हमें डिस्टेंस पता है। लेट ये डिस्टेंस क्या है आपका A के इक्वल है, राइट। इस केस में हमने A ले लिया, इसको B ले लो, और आपको फाइंड आउट करना है X कितना है, राइट। सो X इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, कंप्लीट में से अगर आप B माइनस कर दो तो आपके पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा दैट इज PQ, एंड उसको हम X से रिप्रेजेंट करें। सो आप इस तरीके से भी इस एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल को हमने दूसरी साइड टर्न कर लिया, तो इसमें क्या होगा बच्चा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगेगा अगर हमें ये वाला X निकालना है तो, राइट। सो निकालते हैं बच्चा कितना एरर इंट्रोड्यूस होगा व्हेन वी विल अप्लाई सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, राइट। सो इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जस्ट लाइक दैट ए में कितना एरर होगा बच्चा, ए विल बी हैविंग, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस का डेल्टा ए उसमें एरर होगा, राइट। जस्ट लाइक दिस बी में भी क्या होगा, बी इज इक्वल्स टू, बी जो उसका मेजरमेंट क्वांटिटी है, राइट, उसमें प्लस माइनस डेल्टा बी का क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। जस्ट लाइक दिस जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा उसमें भी क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, उसमें एरर होगा, राइट। सो जस्ट जल्दी से पुट कर दीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन में। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए का और बी का जो वैल्यूज है हमारा विद एरर्स वो पुट कर देंगे, दैट इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू
ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस करना है हमें, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा है, बी की जगह हम बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं, राइट। सो इट विल बिकम जस्ट लाइक अवर प्रीवियस केस। हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स है ए और बी उनको आप आउटसाइड ले लीजिए, एक सेम लिख लीजिए, इकट्ठा लिख लो, a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन लगाएंगे ना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको माइनस कर दो, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, राइट, क्या बन गया, डेल्टा b, राइट। प्लस माइनस साइंस को हमने क्योंकि बाहर ले लिया, x प्लस माइनस डेल्टा x, राइट। जस्ट लाइक दिस वी कैन राइट इट, दिस थिंग a माइनस b इज इक्वल टू किसके इक्वल था, x के इक्वल था, वी कैन राइट x ओवर हियर, राइट, x प्लस माइनस डेल्टा x, दिस इसको हमने x लिख लिया बच्चा, a माइनस बी को, एंड प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। नाउ व्हाट, नाउ x से x कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, एंड वी विल गेट डेल्टा x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाएंगे तो जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट इज x, उसमें कुछ एरर है डेल्टा x फाइनल रिजल्ट में आफ्टर कैलकुलेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये कैसे हो गया, हमने तो सब्ट्रैक्शन किया बट फिर भी हमारी क्या है, एरर्स एडिशन में आई, यस, क्योंकि एरर क्या है बच्चा, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी, राइट। हमेशा हमें कभी भी एरर कम नहीं होती है किसी भी मेजरमेंट रिजल्ट में, जो एरर इंट्रोड्यूस होगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। वो क्या है, आपकी कम कर सकते हो प्रिकॉशंस करके, बट अगर आप कोई ऑपरेशन लगा रहे हो उसके ऊपर तो इट्स बट ऑब्वियस कि वो एरर क्या है आपकी हमेशा इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी किसी भी ऑपरेशन से, राइट। सो दिस was about error of a difference। जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो सब्ट्रैक्शन का तो उस केस में आपकी एरर क्या है, तब भी आपकी एरर एडिटिव ही रहेगी। दैट्स वाई जो एनसीईआरटी बुक है आपका, उसका अगर आप देखें तो आपका पेज नंबर 26 पे बच्चा क्या है, आपका टॉपिक ये वाला गिवन है। थोड़े से नोटेशंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ये इजी नोटेशंस हैं, इजीली आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है बच्चा, आपको सेम टॉपिक में बताया हुआ है एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, राइट। और दोनों का फाइनल उन्होंने रूल क्या बनाया हुआ है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बोर्ड में आपको दिया हुआ है, देखिए 26 पेज एनसीईआरटी बुक में, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, जो एब्सोल्यूट एरर है फाइनल रिजल्ट में, राइट, इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, राइट। चाहे वो सम हो चाहे वो डिफरेंस हो, दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज का जो आपका एरर्स का एडिशन है वही आपका क्या है, फाइनल एरर जो आई है आपकी कैलकुलेशन में वो होगी आपकी, राइट। सो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं लगाना है, एंड दीज डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरर ऑफ अ प्रोडक्ट or multiplication. Product is multiplication only, na. So we are doing multiplication operation, right. Let's take example. We want to calculate force, right. Let's take one example of error of product. We want to calculate force, right. We know this thing by the formula of force. We know it is basically product of mass and acceleration, right. So first what we will do, we will calculate mass, right, this mass, and then we will calculate acceleration individually, right, and then we will just do product of these two individual quantities, and then final result will be equals to force only, right. That is our final calculation operation after product operation, right. So let's take one एग्जाम्पल। लेट किया हमने फोर्स जो आपकी फाइनल कोई भी, ये तो आपका जस्ट एग्जाम्पल था, हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है। लेट जो फाइनल वैल्यू है x, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल a एंड b, राइट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि डेल्टा x, अगर आप प्रोडक्ट करते हो, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज हो रहा है बच्चे यहाँ पर, प्रोडक्ट, राइट, तो उस केस में डेल्टा x किसके इक्वल होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। इजी ना, राइट। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, दैट x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, राइट। सो एज वी नो कि a में कुछ इंडिविजुअल आपका एरर होगा, दैट इज डेल्टा a के इक्वल है, और जो कि प्लस माइनस a,
राइट। ए को हम ये लिख सकते हैं, वी नो दिस थिंग। बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि जो बी का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है वो क्या होगा, मेजरमेंट वैल्यू, और उसमें प्लस माइनस का कुछ एरर भी होगा, दैट इज डेल्टा बी, राइट। एंड जो फाइनल कैलकुलेशन है एक्स, उसमें भी कुछ एरर आएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका x प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, राइट। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट करते हैं हम, इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा एक्स आपका किसने के इक्वल होगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन का, हमने अभी तक सम और डिफरेंस देखा है, राइट। सो पुट करते हैं, वी नो दिस थिंग x इज इक्वल्स टू a डॉट b के इक्वल है, राइट। ये तीनों चीजें इसमें पुट कर दीजिए। x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस माइनस डेल्टा a लिख सकते हैं, और इसका प्रोडक्ट होगा b के साथ, और b को हम लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। इज दिस क्लियर, राइट। नाउ लेट्स टेक x a एंड b कॉमन, राइट। कॉमन ले लेते हैं, हम ले सकते हैं इजिली कॉमन, क्यों ले रहे हैं वो अभी आपको पता लगेगा। फर्स्ट इसमें से x कॉमन लो, क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय x आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर a को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a आ जाएगा, राइट। इनटू में क्या है हमारे पास, b है, राइट। इनटू में b है हमारे पास, तो b को कॉमन ले लो यहाँ से, क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b आ जाएगा आपका। इज दिस क्लियर, राइट। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है होपफुली। सो अब हम a और b का क्या आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, और a और b का प्रोडक्ट आपका किसके इक्वल है, वो है इक्वल x के। सो यहाँ पर हम इस दोनों के प्रोडक्ट को x से रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी सारा सेम रहेगा, दैट इज ये एंड ये, राइट। लिख लो 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a, इनटू में ही रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड में b। जस्ट हमने a और b को क्या लिख दिया बच्चा, प्रोडक्ट को, क्योंकि हम x लिख सकते हैं, उसको हमने पुट कर दिया, राइट। सो दैट जैसे हमने प्रीवियस में किया था, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x को कट कर सकें, है ना। सो इसको कट कर दो, x से x कैंसिल आउट हो गया, राइट। सो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, इसको बच्चा ब्रैकेट्स को खोल लो, राइट। इनको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम आपस में, क्या आएगा, पहले 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर डेल्टा ए प्लस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, वी नो दिस थिंग, राइट। जल्दी से इसको खोल लो, क्या आ गया आपके पास, डेल्टा ए डिवाइड बाय में ए, राइट, प्लस में प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय में बी प्लस माइनस डेल्टा ए, अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ना आपस में, प्लस डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी डिवाइड बाय में बी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब एक चीज देख लो बच्चा, ये जो आपका है, ये जो टर्म है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, राइट। बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो हम क्या कर देंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, राइट। हम इस टर्म को क्या कर रहे हैं बच्चा, निग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये जो प्रोडक्ट है दोनों एरर्स के, दोनों रिलेटिव एरर्स का, राइट। आपने जो रिलेटिव एरर का टॉपिक किया उसमें से देखो, बताओ ना, ये रिलेटिव एरर है आपका ए का, राइट। तो ये क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम निग्लेक्ट कर देंगे, बहुत स्मॉल होता है। हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया बच्चे, राइट, ये दोनों तरफ। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो बचा दैट इज हमारे पास क्या बच गया बच्चे, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, राइट। सो ये हमारे पास बच गया। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता क्या है बच्चा, दैट इज जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है, डिवाइड कर दो उसको ट्रू वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, है ना। जो हमने फ्रैक्शनल एरर पीछे किया था आपके प्रीवियस टॉपिक में, जिन बच्चों ने नहीं किया है, मैं यहाँ पर वीडियो का लिंक आपको ऊपर अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हो, राइट। सो क्या आ गया यहाँ पर, दिस इज रिलेटिव एरर, राइट। सो इसका मतलब जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या करना है बच्चा, जो रिलेटिव एरर है वो मिलता है हमें, जो आपका फाइनल कैलकुलेशन
x था उसका जो रिलेटिव एरर है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, इंडिविजुअल मेजरमेंट क्वांटिटीज जो आपने ली हैं उनका रिलेटिव एरर का सम होगा। हमने देखो बच्चा डिफरेंस समझने की कोशिश करो, जब हमने सम और एडिशन ऑपरेशन लगाया यानी कि आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाया हमने जब आपकी कैलकुलेशंस के लिए, तब जो उनमें एरर इंट्रोड्यूस हुआ दैट वाज सिंपली, क्या था उसका रूल, क्या था हमने अभी पढ़ा था दोनों का, कि जो क्वांटिटीज हैं जो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो जो उनका फाइनल कैलकुलेशन में एरर आएगा दैट इज सिंपली सम ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एरर्स, राइट। बट इस केस में क्या आ गया, जब हमने क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो जो उनमें रिस्पेक्टिव रिलेटिव एरर होगा, राइट, जो फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर होगा दैट इज सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द बोथ द मल्टीप्लायर्स, राइट। सो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एरर ऑफ अ क्वोशंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑपरेशन लगा रहे हैं। लेट हमारे पास क्या है, कोई भी आपका 2a और b इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं और हमें फाइनल जो क्वांटिटी है x मिल रही है। जैसे कि बच्चा यस हमने वीडियो की स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास एक इंडिविजुअल ए क्वांटिटी मान लिया उसको, वॉल्यूम आपका क्या है इंडिविजुअल क्वांटिटी है, उसको मेजर करोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे इसी फॉर्मेट में तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगा, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट। हमारे पास क्या है, डेंस आपका एक क्वांटिटी है आपका ए एंड सेकेंड क्वांटिटी इज स्मॉल बी, राइट। सो लेट्स डिवाइड देम एंड फाइंड आउट what will be the final error introduced in the final calculation x, right. So let's check its derivation, right. So let it be first equation, right. तो इसमें पुट कीजिए बच्चा, एज वी नो x को हम x प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट। एंड b का फाइनल वैल्यू आएगा हमारे पास b प्लस माइनस एरर डेल्टा b के साथ, राइट। सो इनको जस्ट पुट कर दीजिए इसमें एंड यू विल गेट x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू, हमने जैसे कि प्रीवियसली ऑपरेशंस में किया बच्चा जस्ट लाइक दैट इसको पुट कर दीजिए, राइट। सो यू विल गेट x को हमने लिख दिया x प्लस माइनस डेल्टा x, a को आप लिख दीजिए a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b को आप लिख दीजिए b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास बच्चा क्या आ गया, हम यहाँ पर a और b को कॉमन ले लेंगे, राइट। इंडिविजुअल a को पहले कॉमन लिया हमने राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय में a आ गया एंड b को जब कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय में b। इज दिस क्लियर। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड में x को ले लो कॉमन, x को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाय में x आ गया हमारे पास। नाउ वी नो दिस थिंग x इज इक्वल्स, क्योंकि हमने क्या लगाया आपका ऑपरेशन लगाया डिवीजन वाला, x इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b के इक्वल है, राइट। x इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, यानी कि a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय b को हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, राइट। x से x लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों मल्टीप्लाई में तो x से x कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड वी विल गेट x प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a एंड ये बच्चा डिवाइड में है पूरी टर्म। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसके साइंस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस प्लस, ये ध्यान रखना, माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइड बाय में b। इज दिस क्लियर। बस अब इन दोनों प्रोडक्ट वाली टर्म को आपस में प्रोडक्ट कर दो। कैसे होगा, 1 पहले इससे प्रोडक्ट होगा, 1 देन इससे प्रोडक्ट होगा, देन डेल्टा a बाय में a इससे प्रोडक्ट होगा और फिर इससे प्रोडक्ट होगा। यू विल गेट 1 प्लस माइनस, व्हाट यू विल गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a, जस्ट लाइक दिस, जैसे हमने पीछे किया है, राइट। प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a इंटू में डेल्टा b बाय में b, राइट। इस चीज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल है। और यहाँ पर आपका क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन फाइनली यू विल गेट डेल्टा x बाय में x इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया आपका आ गया प्लस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा a डिवाइड बाय a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाय b,
right? So this is what, this is nothing but this is relative error in final result, राइट. इन फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, रिलेटिव एरर जो होगा, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 26 में बिल्कुल नीचे आप देख सकते हो, बोर्ड्स में लिखा हुआ है हैंस रूल. एरर ऑफ अ प्रोडक्ट भी हमने किया, एरर ऑफ अ आपका ये डिवीजन भी किया हमने, है ना. तो एरर ऑफ अ प्रोडक्ट में और डिवीजन में क्या था, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट हमने किया, उसमें भी क्या था, रिलेटिव एरर जो फाइनल कैलकुलेशन का आएगा दैट वाज इक्वल्स टू sum of relative error of both the individual measurements, right? And just like this, जब हमने डिवीजन वाला किया तो उसमें भी क्या आया हमारा, जो रिलेटिव एरर होगा फाइनल रिजल्ट में दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, राइट. सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. आपने क्या किया बच्चा, आज 4 एरर्स के हमने कॉम्बिनेशंस के, प्रोपेगेट कैसे होती है एरर आपके डिफरेंट ऑपरेशंस में, और उसमें हमने देखा कि आपका जब हम सम और डिफरेंस करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो जो फाइनल एरर होता है रिजल्ट में दैट इज बेसिकली सम ऑफ आवर एब्सोल्यूट एरर्स, राइट. और जो एरर हमें मिलती है वो भी हमें फाइनल रिजल्ट में क्या मिलती है, एब्सोल्यूट एरर मिलती है. जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, तो यहाँ मैं आपको वीडियो का लिंक ऊपर टैग कर दे रही हूँ, राइट. ऊपर आपको एक दिख रहा है लिंक, उसको डायरेक्ट क्लिक करो और सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो है मेरी वो चेक करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप इजीली अपने फिजिक्स को बहुत ही ईजी बना लें, है ना. लेट्स मेक फिजिक्स ईजी. सो जब हमने इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया अपना, तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला उनका, उनमें जो रिलेटिव एरर है दैट रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल. यानी कि जब हमने एडिशन और आप करोगे आपका डिवीजन तो हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की, राइट. और जब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की अपने फाइनल रिजल्ट में, राइट. सो आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियो, तब आपको ये सब बहुत इजीली क्लियर हो जाने वाला है. नाउ नेक्स्ट इज एरर ऑफ अ रेज टू पावर, राइट. या फिर आप पेज नंबर 27 पे देख सकते हो, एरर इन केस अ मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज टू अ पावर. यस, ये भी तो एक ऑपरेशन है. जब आप क्या कर रहे हो, लेट हमारे पास कोई भी आपकी एक मेजरमेंट रिजल्ट आया और आपने क्या किया, उसकी पावर को रेज कर दिया, लेट बी पावर से आपने उसको रेज कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था ए, जो हमारी क्वांटिटी थी ए, उसमें कुछ एरर था, तो जब का फाइनल रिजल्ट आएगा पावर को रेज करने के बाद वो भी क्या आएगा, उसमें भी कुछ एरर होगा, है ना. सो लेट किया जो हमारा ए था, ए में आपका क्या था, एक तो आपका जो मेजरमेंट वैल्यू है और उसमें प्लस माइनस का डेल्टा ए का कुछ एरर था, राइट. तो जब आपने पावर बी से उसको रेज किया तो आपका जो एक्स आपका आया, फाइनल रिजल्ट आया, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें एक तो आपकी वैल्यू है प्लस उसमें क्या है आपका डेल्टा एक्स का एरर है, दैट इज फॉर श्योर, है ना. तो हमें इतना एरर मिला, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें जो फाइनल रिजल्ट में एरर आएगा वो कितना आएगा और कैसे उनका रिलेशन बनेगा जब हम पावर से उसको रेज कर रहे हैं. तो सो लेट्स चेक इट आउट. एक्स इज इक्वल्स टू ए विद द पावर बी. लेट किया, ये पावर आपकी क्या है, लेट कर लो b आपका इज इक्वल्स टू 3 है. जस्ट हम लेट कर रहे हैं कि पावर आपका 3 है ना. सो लेट किया कोई भी क्वांटिटी है a और उसका पावर है 3, राइट. यानी कि अब इसमें पुट कर दो बच्चा, x को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं और a को हम a प्लस माइनस डेल्टा a लिख सकते हैं. पुट कीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, a विद a प्लस माइनस डेल्टा a लिख सकते हैं विद द पावर 3, राइट. लिख सकते हैं इसको ऐसे, राइट. सो जब हमने इस तरीके से लिखा, अब हम क्या, ये पूरी एक क्वांटिटी है आपकी, राइट. पूरा एक आपका टर्म है, इस पूरी टर्म का क्यूब, यानी कि इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं. इंडिविजुअल खोल दो इसको, क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट. 1 बार, सेकेंड टाइम इसको प्रोडक्ट में आ जाएगा ना बच्चा, राइट. क्या आ जाएगा आपका, a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट, इंटू में a प्लस माइनस डेल्टा a.
3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब था तो 3 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के इक्वल होगा आपका ये, राइट। अब इसको जब हमने खोल लिया, अब आप इस चीज को लिख सकते हो। नाउ अब हमारे पास बच्चा एक, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है आपस में, जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म बन गई, इंडिविजुअली लेट किया हमने। अब हमने प्रीवियसली हमने क्या किया था, बिकॉज प्रोडक्ट रूल किया था हमने बच्चा एक, अगर आपको याद हो तो, है ना, अभी करके ही आए हैं हम प्रीवियसली इसी वीडियो में, राइट। तो प्रोडक्ट रूल में बच्चे हमारे पास क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट वैल्यू है आपकी एरर होती है, वो रिलेटिव एरर होती है जो फाइनल कैलकुलेशन में आती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरर्स इन इंडिविजुअल जो आपकी टर्म्स रहती हैं। यही था ना बच्चा प्रोडक्ट रूल, रिमाइंड कर रहे हैं, राइट। तो हमने रिवाइंड किया तो हमारे पास ये आया, है ना, प्रोडक्ट रूल ये होता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें प्रोडक्ट करना है इंडिविजुअल क्वांटिटीज का, तो यही सेम रूल लगा दो, है ना। किसके इक्वल आ जाएगा आपका, जो फाइनल आपकी प्रोडक्ट है, जो आपका फाइनल वैल्यू है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो, फाइनल एरर इसमें क्या आएगा बच्चा, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय में x, क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं आपका रिलेटिव एरर, राइट। ये आपका क्या है, फाइनल रिलेटिव एरर है आपका। इज दिस क्लियर बच्चों, राइट। फाइनल रिलेटिव एरर है आपका, राइट। फाइनल रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, क्योंकि प्रोडक्ट में है सारी क्वांटिटीज, प्लस माइनस, और इनका क्या हो जाता है बच्चा, एडिशन हो जाता है ना। क्या आ जाएगा आपका रिलेटिव एरर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस रिलेटिव एरर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस रिलेटिव एरर ऑफ थर्ड टर्म। इज दिस क्लियर। ये हमने इन पे प्रोडक्ट रूल लगाया, क्योंकि अब क्या नो डाउट आपकी सेम आपका एक ही हम बात कर रहे हैं, बट है तो वो प्रोडक्ट में इंडिविजुअली, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू आपका रिलेटिव एरर। अब 1 2 3 क्योंकि सेम है और एडिशन में है, तो क्या आ गया 1 2 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 टाइम्स सेम डेल्टा ए बाय में ए प्लस माइनस, इसको हमने एडिशन कर लिया, राइट। तो एडिशन यानी कि किसके इक्वल आ गया बच्चा, इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या आ गया, जो फाइनल रिलेटिव एरर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 3 हमारा क्या था, 3 हमने लेट किया था, पावर है हमारा, राइट। सो हमारा क्या आ गया बच्चा, रूल बना देते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी यानी कि जो पावर है इनटू में डेल्टा ए बाय में ए। दिस इज योर रूल। कैसे देखते हैं, आपका क्या आ गया बच्चा, जो फाइनल रिजल्ट आया है आपका पावर रेज करने के बाद, उसका जो रिलेटिव एरर होगा दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस उसकी जो पावर है, और उसको प्रोडक्ट कर देंगे हम किससे, उसका जो रिलेटिव एरर है उस सेम क्वांटिटी का जिसकी हमने पावर को रेज किया था, राइट। सो दिस वाज योर फाइनल एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर। यानी कि इसका अगर हम रूल बनाएं, इसका रूल क्या बन गया, एनसीईआरटी में देखो अपना पेज नंबर 27 पे क्या आया बच्चा, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू अ पावर इज, जैसे k टाइम्स या b टाइम हमने पावर रेज किया, नोटेशन कुछ भी हो सकता है, इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो जो उसका फाइनल रिलेटिव एरर होएगा कैलकुलेशन में, दैट इज इक्वल्स टू पावर उतने ही टाइम्स, जितनी आपकी पावर है उसके टाइम आपका क्या मिलेगा, आपको उसके रिलेटिव एरर के उतने ही टाइम्स आपको उसमें एरर मिलेगी, राइट। सो इसमें बहुत ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस होगी, राइट, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट हो रहा है, जितने टाइम आपने पावर बढ़ाई उतनी ही ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस होगी आपके फाइनल रिजल्ट में। तो ये रूल तो था आपका रिलेटिव एरर के केस में। अगर हम बात करें, अगर वो आपको बोल देता है कि अगर आपकी पावर को रेज किया है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स आते हैं JEE और नीट में, तो आप निकाल दो कि आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। अब हमें पता है परसेंटेज एरर निकालना तो बहुत ईजी है। अगर आपके पास डेल्टा एक्स बाय में एक्स रिलेटिव एरर है और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो उसका रिजल्ट आएगा दैट इज, क्योंकि आपका क्या था अभी रिलेटिव एरर का हमने निकाला, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स बाय में एक्स इज इक्वल्स टू आपका प्लस माइनस जो भी आपके टाइम आपने रेज किया है पावर को, इनटू में जो आपका रिलेटिव एरर ऑफ द क्वांटिटी था, राइट। सो आपका कितने इक्वल आ गया, जस्ट इसको प्लस माइनस बी
इंटू में डेल्टा ए डिवाइड बाय में ए इंटू में 100 कर दो तो आपका ये क्या बन गया बच्चा, दिस इज योर परसेंटेज एरर। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज निकल आएगा ना। तो जस्ट आप क्या है इजीली आपका परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, यानी कि परसेंटेज एरर आपका किसके इक्वल आ गया, आपका फाइनल परसेंटेज एरर किसके इक्वल आ जाएगा, आपका आ जाएगा जो उसकी पावर रेज हुई है, रेज्ड पावर, राइट, लेट इट बी स्मॉल बी ओनली, राइट, और इनटू में कर दो आप परसेंटेज एरर, जो आपका ये है, इनटू में परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट, राइट, मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने का। क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिसमें वो हमें रिलेटिव एरर या फिर ये पावर वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके JEE और नीट में, राइट। सो ईजिली, बहुत ईजिली ये ट्रिक्स हैं बच्चा, ये सारे फॉर्मूलाज अपनी जो हमें फाइनल रिजल्ट्स मिले हैं उनको समझने की कोशिश करो, राइट। तो ये अपनी वॉल पे जो भी आपकी है, आप जहाँ पढ़ते हो टेबल पे, वहाँ पर लिख के रख लो, क्योंकि इससे बहुत ढेर क्वेश्चंस बनते हैं आपके एरर्स वाले टॉपिक से, राइट, JEE और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली, राइट। सो ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस एंड चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको रेड आइकन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर दो ताकि आपको, और जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दो ताकि आपको डायरेक्ट जब भी मैं अपनी वीडियोज़ में, ऑब्वियसली डेली आपका मेरी वीडियो रहती है अपलोड, तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।